قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقول. بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، اداکاران سید الشہداء، اداکاران ابو طالب میں محرم کی دوسری تقریب بناء لا الہ کے عنوان پر آپ کی توجہات کی نظر ہے. اور اس عنوان پر گزشتہ تقریر میں جو عرض کیا تھا اس کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ وحدہ لا شریک رہے گا. ایسا نہیں کہ جب آدم نے کلمہ توحید پڑھا تو وہ لا الہ الا اللہ ہوا. اگر ایسا ہے تو خود اس کے پہلے وہ کیا تھا؟ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ ذات مقدسہ، کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سے اس مشیت میں توحید کے گواہ ہیں. خدا کی طرح وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے. یہ پنجتن ہے جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں ہے. عزیزان محترم، جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں توحید کے گواہ بن کر باقی ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ حبیب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. شریعت میں گواہی عینی ہوتی ہے، سنی سنائی نہیں ہوتی. شریعت میں وہ گواہی قابل قبول اور معتبر ہے جو عینی گواہ ہے. اللہ کہتا ہے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. حبیب ہم نے آپ کو بھیجا اپنا شاہد بنا کر، یعنی اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر، اپنی توحید کا گواہ بنا کر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی پہلے ہو گواہ بعد میں ہو. مدعی کون ہے؟ خدا. گواہ کون ہے؟ رسول. جب سے مدعی تب سے گواہ. عدالت میں چاہے جب پیش ہو. محمد وآل محمد. نبی کہتے ہیں اسے کہ جو اللہ سے کلام لے اور بندوں تک پہنچا دے. امتی اسے کہتے ہیں جو بندوں سے پڑھے، بندوں تک پہنچائے اور وہ بھی صحیح نہ پہنچائے. اسے یہ بھی پہنچاتے وقت پتہ نہ ہو کہ سورہ مکی ہے یا مدنی. اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو کہ جسے یہ تمیز نہ ہو کہ مکی سورہ کون سی ہے، مدنی سورہ کون سی ہے. قرآن جمع کر لیا، امتیاز نہ کر سکے کہ مکہ میں کتنی آیتیں، مدینے میں کتنی آیتیں آئیں، کیسے نازل ہوئی. بچوں سے قرآن جمع کرایا تھا، اگر اس سے قرآن لے لیتے. جس علی نے منبر پر کہا تھا
हादा सिफ़तुल इल्म हादा लुआबे रसूलुल्लाह वाह मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। ये मेरा सीना उलूम का गंजीना है, ये लुआबे पैगंबर का असर है। इसने मुझे इल्म भराया जैसे तायर अपने बच्चों को दाना भराता है। वाह 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 वाह। याद रखो, मुझसे पूछो कि कौन सी आयत बहर में नाजिल हुई, कौन सी आयत हवा में नाजिल हुई, कौन सी आयत समा में नाजिल हुई, कौन सी आयत मस्जिद में आई, कौन सी आयत सजदे में आई, कौन सी आयत क़याम में नाजिल हुई, कौन सी आयत मिंबर पर आई, कौन सी आयत मैदान में आई, कौन सी आयत जमकर लड़ने के लिए आई, कौन सी आयत मैदान छोड़ने वालों के लिए आई। मुझसे पूछो ऐ दयानतदार अली, मैं तेरी दयानत के कुर्बान कि अपने सीने पर भी फख्र कर रहा है तो रसूल के हवाले से। ये नहीं कहा अली ने, ये मेरा इल्म है, मेरा सीना इल्म का खजाना है। इसके बाद कहा हादा लुआबे रसूलुल्लाह, ये पैगंबर इस्लाम का लुआब है। इसके लुआब की बरकत, जिसके लुआब की बरकत से अली बने, जिसके लुआब की बरकत से मौला बने, जिसके लुआब की बरकत से हादी बने, जिसके लुआब की बरकत से बाबे इल्म बने, जिसके लुआब की बरकत से अमीर अल मोमिनीन बने, जिसके लुआब की बरकत से इमाम मुत्तकीन बने, जिसके लुआब की बरकत से बाए बिस्मिल्लाह बने, जिसके लुआब की बरकत से सरताज हलता बने। इसके लिए दुनिया कहे हम जैसा वो है, वो नबी हमसा है। ये क्या तेवर है अली के कलाम में, ये लुआबे रसूल है। ये रसूल ने मुझे ऐसे चुराया जैसे परिंदा अपने बच्चों को चुराता है। वो क्यों, वजह, सबब क्यों भराया ऐसे, ऐसे क्यों नहीं भराया जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे क्यों भराया जैसे तायर अपने बच्चों को भराता है। क्यों ऐसा पैगंबर ने अमल किया? इसलिए कि पैगंबर है और मासूम का काम यह है कि वो आयत पहुंचाए। आयत की तारीफ यह है कि ज़ेरो ज़बर पेश में तब्दीली ना हो, वरना तौहीन आयत हो जाएगी। इसलिए अगर अली ये कहते कि पैगंबर ने ऐसे भराया जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो कलाम कुरान की तौहीन हो जाती। इसलिए कि माँ का दूध बच्चे के बदन में मुख्तलिफ तब्दीलियों के मराहल तय करता है, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती है, फिर कहीं जाकर खून बनता है, फिर बच्चे की परवरिश होती है। लेकिन तायर कहकर पैगंबर की दयानत पर मोहर तस्दीक अली ने साबित की है। चूँकि पैगंबर का काम है आयत को बगैर ज़ेबो ज़बर की तब्दीली के बंदों तक पहुँचाना, और तायर उसे कहते हैं कि जो कुछ भी दाना हासिल करे बगैर किसी तब्दीली के उसी तरह बच्चे के सीने में मुंतकिल कर देता है। अली बताना ये चाहते थे कि पैगंबर के पास जो इल्म कुरान है बगैर ज़ेर ज़बर की तब्दीली के पैगंबर ने मुझे अता कर दिया। इसलिए कि पैगंबर का कहना है अल कुरान मा अली अल अली मा अल कुरान लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हम आसमानों ज़मीन को पैदा न करते हबीब अगर तेरी तकदीर मकसूद ना होती। अब दोस्तों, कायनात किसका नाम है? आसमानों ज़मीन के दरमियान जो चीज़ें हैं उसका नाम कायनात है। 18,000 आलम है ना, दुनिया की जदीद तहकीक के मुताबिक 18,000 आलम है कायनात में। और खुदा कहता है मैं 18,000 आलम को पैदा न करता अगर तेरी तकलीफ मकसूद न होती। तो जब खुदा ने ये कहा मैं कुछ पैदा न करता अगर तेरी तकलीफ मकसूद न होती, तो जाहिर है कि हर ज़ी शऊर को समझना चाहिए कि अब अगर खुदा इसके पहले कुछ भी पैदा करे तो ये हदीस मुताल हो जाएगी। अब इसने जो कुछ भी पैदा किया है, इसके बाद पैदा किया है सबसे पहले। अब जो कुछ भी पैदा किया खुदा ने वो सब इसके सामने, आसमान और जमीन, मलक, ऊंट, चरिंद, परिंद, जंगल, पहाड़, दरिया, सितारे, सैयारे, सूरज, चांद, जो कुछ भी पैदा किया है, अब जब सब कुछ इसके सामने है, कोई चीज इसकी नजरों से पोशीदा नहीं है, तो फिर ये आलम गैब क्यों नहीं हुआ? कौन सी चीज है जो इससे छुपी हुई है? सब चीज तो इसके सामने बनी। लोग कहते हैं कि पैगंबर को इल्म गैब नहीं है। पैगंबर को इल्म गैब नहीं है तो फिर किसे इल्म गैब है?
पैगंबर को इल्म गैब नहीं है तो फिर किसे इल्म गैब है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हम ये का गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का गवाह, रसूल। तो अगर तौहीद को बिला फसल गवाह की ज़रूरत है, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को बिला फसल मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत है, तो फिर लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला का कानून बदलेगा नहीं। अगर तौहीद को ला इलाहा इल्लल्लाह बिला फसल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी बिला फसल अलीउल वलीउल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए कि तौहीद का गवाह अभी उस वक्त से होना जरूरी है जब से वो है, तो फिर इसका गवाह भी उस वक्त से होना जरूरी है जब से वो है, वरना कौन गवाही देगा कि ये गवाह है? बहुत तवज्जो। अगर तौहीद को गवाह की जरूरत है मोहम्मद की सूरत में, तो मोहम्मद को भी गवाह की जरूरत है अली की सूरत में। अगर तौहीद का गवाह मिल जानिल्लाह है, तो नबूवत का गवाह भी मक्का मदीना की गलियों से नहीं आएगा, अल्लाह के घर से आएगा। वाह 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 वाह। ऐ नबी को 40 बरस के बाद नबी मानने वालों, नबी 40 बरस के बाद नबी नहीं बना। नबी तो उस वक्त भी नबी था जब आदम और गिल के दरमियान था, मगर इंतजार कर रहा था कि काबे में कोई गवाह आ जाए तो ऐलान नबूवत करूं। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, इंतजार किया है, शान नबूवत के खिलाफ है। अगर पैगंबर 40 बरस तक नबी नहीं थे तो क्या थे? मैंने एक सवाल छेड़ा है मिल्लत को दावत फिक्र देने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि अगर 40 बरस तक पैगंबर ने इंतजार किया तो किस गवाह का? गवाह आ जाए तो ऐलान कर दूं। गवाह तो पहले ये था, मगर ये गवाह गायब था। ऐलान नबूवत किन काफिरों पर करना है जो काफिर गैब पर ईमान नहीं रखते? मानेंगे नहीं काफिर। इंतजार किया कि वो आने वाला आ जाए तो फिर ऐलान करूं, और वो जब आने वाला आ गया और खुदा भी गवाह का बड़ा एहतमाम किया, अपने कुरान को नबी के घर में उतारा, नबी के गवाह को अपने घर में उतारा। वाह मोहतरम, देखिए ना, तरतीब ही बदल दी। भाई होना तो ये चाहिए था कि खुदा का कुरान था, खुदा के घर में आता, नबी का अली था, नबी के घर में आता, लेकिन नहीं, अपने कुरान को उतारा नबी के घर में, नबी के गवाह को उतारा अपने घर में, और अपने घर में बतौर मौजूदा उतारा। दीवारे काबा शक हुई, फातिमा बिनते असद अंदर गई, दीवारे काबा फिर मिली, अली काबे में आए। क्या अली को जो कुछ खिदमत करना है नबी की वो तो बाद में करना है। अभी अली ने बद्र तो फतह नहीं की, ओहद तो फतह नहीं की, खैबर और खंदक तो फतह नहीं किया, अभी अली बिस्तर पर तो नहीं सोए, अभी अली तो नहीं गए, अभी अली ने नुसरत पैगंबर तो नहीं की, अभी अली ने कुछ भी तो नहीं किया, मगर खुदा इतनी बड़ी जजा दे रहा है कि ऐ नबी के गवाह, मैं तेरे अमल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुझे अपने घर में पैदा करके दुनिया के मुवज़्ज़िफ़ीन की ज़बान पर ताले डालना चाहता हूँ कि अली अमल की वजह से अली नहीं बना, बल्कि जिस घर में आया था वो घर अली था। अब ये अली की शराफ़त है, ये अली के अली होने की दलील है कि इसके बाद भी नुसरत की, ना भी करते तो अली थे, इसलिए कि खुदा ओहदे वापस नहीं लिया करता और कमज़र्फ़ों को दिया नहीं करता। बहुत तवज्जो, अली पैदा हुए तो अली था, नबी का गवाह आया खाने काबा में, नबी का गवाह आया खुदा के घर से, नबी की जबान चूसी, कुरान सुनाया, कहा हादा सिफ़तु इल्मे हादा लुआबे रसूलल्लाह, जबान चूस कर फौरन ही कहा कहे रसूलल्लाह तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। हालांकि अभी कुरान भी नाजिल नहीं हुआ। तो अल्लाह का गवाह मोहम्मद का गवाह अली, जब वो काबे से आया 12 बरस का सिन था, आयत तब आई वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब सबसे पहले अपने क़राबतदारों में ऐलान रिसालत करो। पैगंबर इस्लाम पहाड़ की चोटी से ये कहकर उतरे कि या अली दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ। पैगंबर ने ये नहीं कहा कहाँ एहतमाम करूं,
शादी भी हो चुकी है पैगंबर की, खदीजतुल कुबरा का घर भी है, लेकिन अल्लाह के तदब्बुर रसूल की इस्लाम की पहली दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली ईद न मक्के में रखी गई, न मदीने में रखी गई, न मस्जिद नबवी में रखी गई, न बैतुल मुक़द्दस में रखी गई, न किसी मैदान में रखी गई। दावत इस्लाम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह यानी इस्लाम की पहली ईद, इस्लाम के ताजमहल का पहला संगमरमर अबू तालिब के घर में रखा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दावत इस्लाम पहले अबू तालिब के घर में, तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि हिदायत का पहला घर न मक्का है न मदीना है, हिदायत का पहला घर अबू तालिब का घर है। अब यहाँ से गवाही की मंजिल है। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम रसालत करते हैं, पूरे मदीने पर सुकूत मर्द तारी है। 12 बरस की उम्र का बच्चा उठा और कहा, क्या कहने ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। किया कि आज के दिन जो मेरी तस्दीक करेगा वो मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा वजीर होगा। आज ही से तस्दीक कर पूरे मजमे से कोई नहीं उठा। अली उठा और उठकर गवाही दी, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। तो बहुत तवज्जो, अब कलमा किसने पढ़ा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अली ने कहा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा किसने पढ़ा? अली ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि खुदा वहदहू ला शरीक है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप हमेशा से अल्लाह के रसूल है। रसूल ने क्या कहा था? जो मेरी गवाही देगा आज ही से वो मेरा वली होगा। अब तारीख के मुवादिक फैसला करे कि जब अली ने तस्दीक कर दी, गवाही दे दी, तो लामुहाल पैगंबर ने कहा होगा अपने वादे के मुताबिक कि अगर तूने मेरी तस्दीक की है, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया के करोड़ों मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अली की सुन्नत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ पड़ी? अबू तालिब के घर से। इसी अबू तालिब के खून की सरबलंदी का नाम करबला है। अबू तालिब के खून की सरबलंदी का नाम करबला है। करबला नाम है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का। और ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था, उनके बख्शत बे यकीनन ला यकीन, उनके लज़्ज़त अब सुजूदे ओ ज़मीन। वो हुसैन जिसने बे यकीनों को यकीन बख्शा, वो हुसैन के जिसके सजदे से ज़मीन में ज़लज़ले आए, उनके ज़ेरे तेग गोयद ला इलाह, उनके यफ़कूने गोयद ला इलाह। वो हुसैन के जिसने तलवार के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो हुसैन के जिसके खून के हर मौत से कलमा ला इलाहा बना। दोस्तों, कहते हैं ना कि हुसैन की कुर्बानी सबसे बड़ी है, यकीनन सबसे बड़ी है। लेकिन एक जुमला कह दूं आज कि हुसैन की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी भी बड़ी कोई चीज है, यकीनन कोई चीज है, और वो चीज है जिस पर हुसैन कुर्बान हो गया। यानी कोई चीज तो है, ऐसी चीज तो है जिस पर हुसैन कुर्बान हो गया। ऐसी चीज जिससे कीमती हुसैन ना अकबर की जवानी समझ रहे हैं, ना कासिम का बचपना समझ रहे हैं, ना मोहम्मद का लड़कपन समझ रहे हैं, ना बहन की चादर समझ रहे हैं। ज़ैनब की चादर से भी कीमती चीज है तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए है हुसैन बिनाए ला इलाह। जिस चीज पर हुसैन ज़ैनब की चादर कुर्बान कर दे, अकबर की जवानी कुर्बान कर दे, असगर का गला कुर्बान कर दे, और मोहम्मद के जिस्म कुर्बान कर दे, कासिम का लाशा पामाल करा ले, जिसके लिए यकीनन वो कोई बहुत बड़ी चीज है। हाँ दोस्तों, इसीलिए उजड़ गया मदीना, लुट गया बतूल का घर, उदास हो गई कब्र रसूल, सोगवार हो गई फातिमा ज़हरा की दरीन। चल रहा है हुसैन मदीने से, रवाना हो गया काफिला,
दोस्तों, जब आप सफर पर जाते हैं, खुसूसन खवातीन जब खवातीन को रुखसत करने आती हैं तो आकर कहती हैं खुदा खैर से लाए। अगर ना जाते तो अच्छा था। अज़ादारो, ज़ैनब भी मदीने से चलकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही कि कोई मदीने वाला आए, कोई मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला आए और आकर कहे खैर से वापस आना, कब तक वापस आओगे। अज़ादारो, ज़ैनब की हसरत ही रही। काफिला रवाना हुआ। अली की बेटी को दाएं बाजू से हुसैन ने पकड़ा, बाया बाजू अली अकबर ने संभाला, जानू अब्बास ने तय किया, भाइयों ने सवार किया। इस शान से ज़ैनब मदीने से रवाना हुई, इसलिए कि ये मदीना है, कूफा नहीं। अज़ादारो, मदीने से रवानगी के बाद 2 मरतबा ये काफिला रुका है। दोनों वजूहात सुन लो। काफिला अभी थोड़ी दूर चला था मदीने से कि एक मरतबा किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हुसैन ने मुड़ कर देखा तो अबुल फजील अब्बास की माँ असा का सहारा लिए काफिले के पीछे आई है। माँ के एहतराम में इमाम वक्त घोड़े से उतरे, अब्बास घोड़े से उतरे, अकबर घोड़े से उतरे, हल्का बना लिया माँ का। लेकिन मैं सलाम क्यों करता हूँ उम्मुल बनीन को, इसलिए कि बराबर में अब्बास खड़ा है, मगर उस्मान ने अब्बास की तरफ नजर धरकर भी नहीं देखा। हुसैन के चेहरे की बलाई ली और उसके बाद कहा, मेरे शहजादी सैयदा के मासूम शहजादे, बता मैं तेरी क्या लगती हूँ। हुसैन कहते हैं, अम्मा आप मेरी माँ है। कहा, बेटा बनकर कह रहा है, इमाम बनकर तो नहीं। अल्लाहू अकबर, माँ मैं बेटा बनकर कह रहा हूँ, आप मेरी माँ है। कहा, नहीं बेटा, मैंने तो सारी जिंदगी अपने आप को तुम्हारी करीब समझा। मैं तो अली के घर में अली की ज़ौजा बनकर नहीं आई थी, फातिमा के बच्चों की खिदमतगार बनकर आई थी। मैंने तुम्हें अपना आका दादा समझा है, मैंने तुम्हें फातिमा का शहजादा समझा है। आज चलते चलते मुझकनीस की एक गुजारिश है, अम्मा हुक्म करे। कहा, एक लम्हे के लिए मुझे अब्बास को दे दे। बेटा, एक लम्हे के लिए अब्बास को दे दे, वादा करती हूँ अभी वापस देकर जाऊंगी। कहा, अम्मा तुम्हारा बेटा है, ले जाओ। चलते चलते उम्मुल बनीन गए रसूल में आई और जब ये रसूल के पास आकर कहा, अब्बास बैठ जाओ। अब्बास बैठ गए, उम्मुल बनीन भी बैठ गई। अब्बास से कहा, बेटा अब्बास, ये तेरे दाएं जानिब का क्या है। कहा, माँ से कब्र रसूल है। कहा, बेटा दायां हाथ, उस पर दायां हाथ रख। अब्बास का बायां हाथ उठाकर उम्मुल बनीन ने अपने सर पर रखा। बेटा ये क्या है। कहा, अम्मा आप जैसी अजीमुल मर्तबत माँ का सर। बेटा हम कहाँ बैठे हैं। कहा, रौज़ा रसूल पर। कहा, बेटा हम रसूल के रोज़े में बैठे हैं। वाह, कब्र रसूल पर, एक हाथ कब्र रसूल पर है, बायां हाथ तेरी माँ के सर पर है। जब अब्बास से 3 मरतबा कहलाया तो अब उम्मुल बनीन कहती है, बेटा कब्र रसूल को गवाह बनाकर माँ के सर की कसम खाकर आज मुझसे अहद कर कि जब तक तेरे ये बाजू सलामत है ज़ैनब की चादर नहीं छिलेगी, ज़ैनब की चादर सलामत रहेगी। अब्बास ने कसम खाई। अब्बास ये कसम खाता है कि जब तक अब्बास की जान बाकी रहेगी कोई ज़ैनब के चादर की तरफ नहीं देखेगा। अब्बास, मैंने इजाजत दे दी। अब्बास वापस आए। काफिला अभी थोड़ी दूर चला था कि एक मर्तबा अब्बास ने पलट कर देखा और चिल्ला कर कहा, आका हुसैन काफिला रोको। सोगरा ड्योड़ी से वापस आ गई। अज़ादारों, कोई मामूली जुमला नहीं है। अब्बास की जिंदगी में और कोई बीबी ड्योड़ी से बाहर आ जाए। अब्बास घोड़े से उतरे, अपने दोस्त से अबा उतारी और सोगरा के सर पर डाली। सोगरा, मेरे लाल, मेरी जिंदगी में ड्योड़ी से बाहर क्यों आ गई। चचा, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, चचा मेरे बाबा को आने दो। हुसैन करीब आए। कहा, क्या बात है।
मेरे लाल जोड़ी से बाहर क्यों आ गई? कहा बाबा जाने के लिए नहीं आई, बस एक मर्तबा मेरे असगर से मिला दो। अल्लाह रबाब की हमारी बैठाई गई, रबाब हमारी से उतरी, असगर को लिया और सोगरा की गोद में दिया। सोगरा ने पेशानी का बोसा दिया, अजादारों पेशानी का बोसा दिया, हुसैन चुप रहे। दाएं रफ्तार का बोसा दिया, हुसैन चुप रहे। बाएं गाल का बोसा दिया, हुसैन चुप रहे। लेकिन जब सोगरा ने असगर के गले का बोसा लिया तो हुसैन रो पड़े। सोगरा कहती है मेरे भैया तुम भी बहन को छोड़कर जा रहे हो, असगर तुम घर में रहो, मैं तुम्हें झूला झुलाती रहूंगी। असगर बहन की गोद से लिपट गए। अब रबाब आगे बढ़ी मगर असगर ने सोगरा की गोद न छोड़ी। ज़ैनब ने चाहा, असगर ने सोगरा की गोद नहीं छोड़ी। आखिरी मर्तबा हुसैन ने बाहें फैलाए हुए आगे बढ़े। जब हुसैन आगे बढ़े सोगरा असगर को लेकर पीछे हट गई। पीछे हटकर कहती है बाबा जबरदस्ती न लेना, बाबा अगर असगर खुद आ जाए तो ले लेना, मगर जबरदस्ती न लेना। हुसैन कहते हैं नहीं सोगरा, मुझे असगर से एक बात कहने दो। हुसैन असगर के करीब आए। असगर के कान में अल्लाह जाने हुसैन ने क्या कहा कि एक मर्तबा असगर ने बहन के चेहरे को देखा, बाप की तरफ लपक कर हुसैन की गोद में आ गए। सोगरा तड़पने लगी, असगर चले गए। मदीना उजड़ गया बुतूल का घर।